the data. So we all understood that statistics is about what? Statistics is about collection, interpreting, and further decision making from the organized data, right? So statistics as a subject, we all understood that statistics is primarily concerned with the analysis and interpretation of collected and organized data. So we understood in our businesses, in whatever business we do, actually कोई भी business अगर आप करते हो तो इसमें statistics की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, because statistics will give you a proper guideline इन फर्दर फोरकास्टिंग. आप अगर फर्दर फोरकास्टिंग करते हो, जैसे इकोनॉमिक फोरकास्टिंग की बात करते हैं, सो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग के ऊपर, डिमांड फोरकास्टिंग के ऊपर, योर एंटायर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, योर ऑपरेशंस मैनेजमेंट, योर एचआर फैक्टर, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट. सो वी आर एक्चुअली डिपेंडेंट to some extent in our business decisions. All the decisions are to some extent dependent on our future planning. Now future planning, future is very uncertain, we never know about the future. The future is quite uncertain, and the turbulent environment that we are facing today, the future is really very uncertain. So in that scenario, what we can do, we can plan. Now planning or estimation of the future is actually dependent on some estimation or the forecasting. Now how we will go ahead with the forecasting? This forecasting process, the forecasting का जो entire process है, इसको एक systematic way statistics हमें देता है. So statistics जो as a subject है, it deals with data management and help in estimation. तो ये डिसीजन मेकिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टैटिस्टिक्स एज अ होल. देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ, स्टैटिस्टिक्स इज प्राइमरीली कंसर्न with the analysis and interpretation of collected and organized data. So here we understood that data plays the foremost important role. Basic है, whether your decision making will prove to be successful or not, आपकी forecasting accurate होगी या नहीं होगी, it all depends on your data. आप किस तरह का डेटा कलेक्ट करते हो, बिकॉज एंटायर स्टैटिस्टिक्स जो है ना, इट इज बेस्ड ऑन द डेटा यू कलेक्ट. because statistics is analysis. Statistics as a subject will do what? Statistics analyze करेगा, analysis करेगा, interpretation करेगा of the data. Now from where would you get the data? अब ये इंपॉर्टेंट रोल है कि डेटा क्या है, डेटा कहाँ से हम सोर्सिंग कर रहे हैं, किस टाइप की डेटा है. सो व्हाट इज डेटा एक्चुअली? When we talk about data, तो डेटा के पहले हम इंफॉर्मेशन या नॉलेज के बारे में जान लें. हम लोग को जब फोरकास्टिंग करनी होती है, when we are trying to estimate about the future, so actually we need information about current trend क्या है, past trend क्या था, and accordingly we can predict about the future, right? So we can measure the risk and uncertainty factor accordingly. तो इसके लिए first thing is data. So what is data? तो हमें ये समझना है what is data. So data is a collection of facts and figures relating to any particular phenomenon under study. So anything, when we talk about data can be anything, any collection of facts and figures, means we are collecting all the facts and figures relating to any particular phenomena. It could be any particular phenomena. It could be climate, season, weather forecast, annual demand, market structure, anything. So anything. So we are collecting data. So data is a collection of facts and figures relating to a particular phenomena under study, right? So the person जो इस data को collect करते हैं, who entered into the statistical inquiry, is known as an investigator, right? The process of counting or enumeration or measurement together with the systematic recording of results is called the collection of statistical data. ये हो गया collection of statistical data. Now let us understand the different types of variables, classifying variables by type. Now what is variables? अब ये जो variables की बात हम कर रहे हैं ना, actually ये variables, what are the things that we need to measure? Variables की जब हम बात करते हैं, variables मतलब आप बोल सकते हो इट्स अ टाइप ऑफ डेटा ओनली, बिकॉज दिस आर द थिंग्स विच वी नीड टू मेजर. हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं ना, डेटा कलेक्शन का मेन रीजन क्या होता है? ये डेटा हमारे दो तरह के हो सकते हैं. इट कुड बी क्वालिटेटिव, इट कुड बी क्वांटिटेटिव, दोनों तरह के हो सकते हैं ना हमारे डेटा. सो वो डेटा टू सम एक्सटेंट हम डेटा को ही वेरिएबल्स बोलते हैं, बिकॉज डेटा इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग. सो वी हैव टू डिसाइड ऑन द वेरिएबल्स, लाइक वेरिएबल्स टू बी मेजर्ड. तो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स इज एक्चुअली द डेटा ओनली. हम ये जो डेटा कलेक्शन कर रहे हैं,
डेटा को ही हम बोल सकते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। डेटा को ही दूसरे सिनेरियो में जब हम उसके मेजरमेंट की बात करते हैं, जब रॉ प्रोसेस में होता है तब हम लोग उसको डेटा बोलते हैं। नाउ वेरिएबल्स मतलब आ गया जब उसके हम फर्दर क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं, फर्दर जब हम उसको एनालिसिस में ले जाते हैं तो अभी उसके जो नॉमेनक्लेचर है वो चेंज हो जाता है, वो हो जाता है वेरिएबल्स। सो क्लासिफाइंग वेरिएबल्स बाय टाइप, तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं वेरिएबल्स बाय टाइप, कितने तरह का होता है। तो हम लोग डेटा भी बोल सकते हैं, वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट इज क्वालिटेटिव, अनदर इज क्वांटिटेटिव। वी ऑल नो दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में वेरिएबल्स को समझाऊं तो वेरिएबल्स हम लोग किसको बोलते थे, वेरिएबल्स मतलब एनीथिंग which vary according to the situation or according to the environment. जैसे हम लोग, अगर मैं जनरल इक्वेशन करूं y is equals to a plus bx, so here what is variables, y is dependent on a plus bx, so y vary according to the changes in a plus bx, right? So ये variables क्या है, variables is actually the data. So ये दो तरीके होते हैं जिसको हम लोग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव तरीके से डिवाइड करते हैं, और वी से इट एज कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल। कैटेगोरिकल मतलब क्वालिटेटिव डेटा या वेरिएबल्स दैट टेक्स कैटेगरीज एज देयर वैल्यूज सच एज यस, नो, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन एक्सेट्रा। मींस एनीथिंग क्वालिटेटिव, मेरी जजमेंटल है, मैं अपने अपनी सोच के आधार पर बोल रही हूँ, तो दिस इज क्वालिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स दैट विल वैरी, एनीथिंग द वैल्यूज ऑफ विच विल वैरी, any means you take on any situation, the values of which will vary will be called as variable, like the price. If I am estimating the price, I am measuring the price of something, the price for a period, for a tenure, then the price will be the variable. Suppose I am, or the demand, annual demand estimation, so I am measuring the demand for a certain product, then definitely the demand is the variable. So we can classify the variable according to the type. Fine. According, is this clear? Means whatever I'm means teaching as of now, my audio, visual, everything is clear to you. Yes, Everything yes. is clear. I'm just asking because of this network issues and all. Yes, it is Okay. fine. Okay, chalo. Let me continue then. So classifying variables by type. First is the categorical, that is qualitative variables. Qualitative variables, it depends on the judgment. It whether it will say either yes or no. It does not have any quantitative numericals. Numbers nahi hai isme. On the other hand, numericals. Numericals variables kya? These are the quantitative variables. Have values that represent a counted or measured quantity. Itna kilo, itna kilogram, itna quantity of demand. So this type of thing will be quantitative. Fine. Quantitative variable. जैसे मैंने price बताया, price, demand, anything. Now, quantitative maybe we have two types of another variables, that is discrete variables and continuous variable. Discrete variables arises from a counting process, means it's simply based on simple counting, 1 2 3 4 whatever we count on that, right? Discrete variable. And continuous variables arise from a measuring process, like it is a continuous process. How long did you went to that, what is the time frame, 1 hour, 2 hour, 1 to 2 hours, this way it's a continuous process, right? So this is called as continuous variable. Now we have a very important method that we will be using is DCOVA method. Fine. DCOVA is a method which will help us to means it's a process, means how to collect the data and how to analyze everything. Means this is a sequential process. Normally we used to do this process earlier also, but a proper name has been assigned, that is DCOVA. Here we use the means DCOVA. This is a process. Define, this is the definition stage where we define the variables for which you want to reach a conclusion. That means here our problem has to be identified. What is our problem? You need to define the variables. किस चीज को हमें measure करना है? That you need to define, that this is the scenario, this is the variable I need to measure. ये scenario है, ये चीज है, इस चीज को हमको जानना है. Anything, it could be anything. Price हो, annual demand हो, failure rate ho, or turnover rate ho, anything. So definition, defining is the process. Next stage will be the collection. That is, you need to collect the data. Here, you need to collect the data from the appropriate sources, right? Then you organize the data. After you collect the data from the appropriate sources, you will organize the data collected by developing tables or graphs, anything as such, right? Then visualizing the data by developing charts, and analyzing the data. Analysis is the final stage when we interpret, analysis and interpretation is finally done.
So let us move to the first stage, that is definition of the data or defining the variables. This is the first stage of DCOVA. So first, do you have a Facebook profile? Responses is like this, yes or no. So what is it, this variable type? What type of data will say? This is a categorical variable, which is also called as qualitative variable, right? So do you have a Facebook profile? Yes or no? You will respond in a manner, yes, हाँ है या नहीं है, ऐसे ही बोलोगे ना, qualitative है ये. How many text messages have you sent in the past 3 days? This is numerical discrete variable, क्योंकि आप specific number बोलोगे यहाँ पर. How many? It can be 20, 200, anything. How long did the mobile app update take to download? कितना time लगा? How long did the mobile app update take to download? कितना time लगा? This is numerical continuous. ठीक है, this is a continuous variable. समझ आया? Now we Yes, have yes. types. We have types of variables. That is, variables are categorical as well as numerical. Now in categorical, we understood that it can be anything: marital status, political party, eye color, anything that is defined categories. देखो इसका कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम है. अच्छा, तो अभी जाओ ऊपर, हम पढ़ा क्या करें. Now numerical data. We have numerical data, that is quantitative. We have discrete and continuous. This is very clear. Discrete is simply the counted items, and continuous is the measured characteristic. Weight, voltage, anything. It is continuous. Now, collecting data correctly is a critical task. We understood that collection of data, this is the first stage, because everything is dependent on our data. If there's any imperfection regarding the data, your entire process of further analysis and decision making will go wrong, right? So collecting data correctly is a critical task. Here, we need to avoid data flawed by biases, ambiguities or other types of errors. Clear? जहां पे हमारे डेटा कलेक्शन हो रहा है उस स्टेज में कोई बायसेस नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये पसंद है सो आई टेक ऑन दिस. कोई एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए कि ये लूं या वो लूं, कुछ भी. मींस इट हैज टू बी एरर फ्री. अगर आपके डेटा में कोई एरर्स रहेंगे देन इट विल नॉट वर्क. रिजल्ट्स फ्रॉम फ्लॉड डेटा विल बी सस्पेक्ट और इन एरर. अगर गलत डेटा होगा तो आपके रिजल्ट्स भी सस्पेक्टेड या एररफुल होंगे, राइट? Even the most sophisticated statistical methods are not very useful when the data is flawed. आप जितना भी sophisticated methods use कर लो, SPSS use करो, आप कुछ भी method use कर लो, एकदम न्यू से न्यू जितनी भी आपके updated versions है वो सब भी use कर लो statistical method के, but अगर data ही गलत है, क्योंकि basic data is the basic input, तो basic input अगर गलत है तो पूरा चीज ही गलत हो जाता है ना. Now, the sources of data, we have two sources. First is the primary sources, जहाँ पे हम लोग raw data collect करते हैं. The data collector is the one using the data for analysis. Primary sources एकदम raw data है, जो either आपके एकदम census से लेते हैं, data from political survey, data collected from an experiment or observed data. एकदम basic sources है, right? Then the secondary sources. जो प्राइमरी सोर्सेस को ही हम लोग लेते हैं, मैंने प्राइमरी सोर्सेस को लेकर एज अ बेस पॉइंट वी स्टार्ट द सोर्सिंग. जैसे मैंने प्राइमरी सोर्सेज में मैंने कलेक्ट किया 100 स्टूडेंट्स in Lake Gardens area. We have total 100 students, right? So secondary sources, maybe somebody, another investigator wanted only to know the MBA students in Lake Garden. So out of that 100 students, he might have got 20 MBA students in Lake Garden. So this is the secondary source. So प्राइमरी सोर्स ही यूज होता है सेकेंडरी सोर्स में. प्राइमरी रॉ डेटा जो आप ओवरऑल कलेक्ट कर रहे हो, सेकेंडरी जो ऑलरेडी है आपके पास उसी को आप फर्दर एनालाइज कर रहे हो, राइट? सो प्राइमरी सोर्सेज में जो डेटा कलेक्टर है वो डेटा कलेक्टर होता है. डेटा जो डेटा एनालिसिस कर रहा है, ही इज द डेटा कलेक्टर. बट सेकेंडरी सोर्सेज में जो डेटा एनालिसिस कर रहा है, ही इज नॉट द डेटा कलेक्टर. वो सिर्फ डेटा एनालाइज करता है जो ऑलरेडी प्राइमरी सोर्सेज पे उसको मिल जाता है, राइट? सो हियर द प्रोसेस वुड बी एनालाइजिंग सेंसस डेटा, examining data from the print journals or data published on the internet. Fine. Now, data is collected from either a population or a sample. अब देखो डेटा जो हम कलेक्शन करते हैं, this is either collected from a population or a sample. Now, what is a population? Population मतलब क्या हो गया? मैं entire total population की बात कर रही हूँ. मतलब the population consists of all the items or individuals about which you want to draw a conclusion. The population is the large group. Suppose we have total 100 MBA students at Lake Garden. So ये जो total 100 MBA students क्या हो गया? ये total हो गया population. Total population है 100 MBA student in Lake Gardens.
तो आप 100 स्टूडेंट से ही इंक्वायर कर रहे हो, वहां से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उनके बारे में जानकारी ले रहे हो. इट इज पॉसिबल कि एक डेटा इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, ही विल गो टू ईच वन ऑफ द मेंबर, वो एक एक करके जाएगा 100 मेंबर्स के पास और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा. ठीक है. अनदर इज अ सैंपल. सैंपल क्या है? सैंपल इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन. Sample is the portion of a population selected for analysis. The sample is the small group. So population का ही एक part होता है sample. जैसे मेरा total population कितना है? 100. 100 में से मैंने क्या किया, वो 100 जो students है उनके जैसे characteristics हैं वही assume करते हैं कि sample जो, suppose मैंने sample उनमें से select किया 20 sample. ठीक है. सो सैंपल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन. तो जैसा 100 लोगों का वी अज्यूम कि 100 स्टूडेंट्स का जिस तरह का कैरेक्टरिस्टिक होगा, जिस तरीके का रिस्पॉन्ड होगा, वैसे ही हमारे सैंपल का भी रिस्पॉन्ड होगा. ठीक है ना. पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल. ये देखो पॉपुलेशन क्या है, ये टोटल है, ऑल द आइटम्स और द इंडिविजुअल्स अबाउट विच यू वांट टू ड्रॉ अ कंक्लूजन. ये हो गया आपका टोटल पॉपुलेशन जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी है. सपोज दिस आर टोटल 100 मेंबर्स. टोटल 100 मेंबर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए. तो एक अप्रोच क्या होगा, यू विल मूव ऑन टू ईच वन ऑफ द मेंबर. आप हर एक के पास जा रहे हो एक एक करके और सबसे पूछ रहे हो कि आपका रिस्पॉन्ड कैसा है, आपका रिस्पॉन्स कैसा है, इस तरीके से. सो पूरे पॉपुलेशन का सर्वे करना इज एक्चुअली वेरी टफ. ठीक है. जो सेंसस में होता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन. एंड दिस इज द सैंपल. सैंपल क्या है, देखो आप हर जगह से एक एक जन को लिया गया है. सैंपल बहुत तरीके से बनाया जाता है. सो सैंपल में जो यहाँ से कुछ ले लिए, यहाँ से एक ले लिए, यहाँ से तो क्या हमने अचानक से रैंडम सैंपलिंग कर लिया. सो दिस इज अज्यूम्ड कि ये जो सैंपल है, सैंपल में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7. वी हैव 7 मेंबर्स एज अ सैंपल. सो सैंपल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन. So sample will represent the characteristics of the population. Is this clear? आगे बढ़ू? हाँ ठीक है. Okay, चलिए. Now, collecting data via sampling is used when selecting a sample is. देखो अभी क्या है, हम लोग को सैम्पलिंग जब हम लोग करते हैं तो सैम्पलिंग करना मेरे लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि देखो सैंपल से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं सो डेफिनेटली देखो मैंने पहले ही तुमको बताया कि ओवरऑल अगर आप 100 लोगों से, 100 स्टूडेंट से मैं अगर गई और क्वेश्चन पूछी तो कितना टफ होगा मेरे लिए. इट वुड बी एक्चुअली वेरी टफ ना. मैं अगर 100 लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी. सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सैम्पलिंग को प्रेफर करते हैं. तो सैम्पलिंग विल बी वेरी इजी फॉर अस. मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा सैम्पलिंग पे काम करना. सो सैम्पलिंग में it's less time consuming than selecting every item in the population, less costly than selecting every item in the population, and less cumbersome and more practical than analyzing the entire population. So definitely we understood कि अगर हम लोग sampling को use करते हैं it would be really very easy. बहुत time consuming, मतलब population से पूरा करेंगे तो time consuming ज़्यादा होगा. बट अगर सिर्फ सैंपल करते हैं, सैम्पलिंग से, सैंपल भी तो वो कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट कर रहा है ना. बट हाँ, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका जो सैंपल है वो कितने अच्छे से सिलेक्ट किया हुआ है. अगर सैंपल अगर गलत होगा तो पूरा आपका डिसीजन मेकिंग फर्दर जो अप्रोच है वो गलत होते जाएंगे. तो इट इज मोर प्रैक्टिकल दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ सैंपल वी आर कलेक्टिंग. अगर मैंने सैंपल अच्छे से सिलेक्शन किया है, पॉपुलेशन जो एंटायर पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन से अगर मैंने सैंपल को अच्छे से सिलेक्शन किया है तो उस सैंपल से मैं फर्दर डिसीजन लूंगी, राइट. सो मेरे उस डिसीजन में डेफिनेटली वो सही होगा मेरे लिए. ठीक है ना. सैम्पलिंग प्रोसेस बिगिंस विद अ सैम्पलिंग फ्रेम. तो अब जब आप सैम्पलिंग तैयार करोगे, मैंने सैंपल जो हम लोग सैम्पलिंग मेथड यूज करेंगे फॉर कलेक्टिंग डेटा, तो उसके लिए हम लोग को एक सैंपल बनाना पड़ता है, एक सैम्पलिंग फ्रेम, क्योंकि एंटायर पॉपुलेशन है, राइट. सो सैम्पलिंग फ्रेम इज अ लिस्टिंग ऑफ आइटम्स दैट मेक्स अप द पॉपुलेशन. तो वी हैव एंटायर सेट ऑफ पॉपुलेशन, मेरे पास टोटल पॉपुलेशन है, राइट. तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा, वो पूरा फ्रेम ऑफ पॉपुलेशन. Frames are data sources such as population, list, directories or maps. Anything. Frame मतलब total आपके सब चीजों को हमको देखना है कि वो it could be anything measurable. Inaccurate or biased results can result if frame excludes certain portion of the population. अभी क्या हो गया, अगर वो frame जो है कुछ पॉपुलेशन को छोड़ देता है, जैसे मैंने बताया अगर inaccurate होता है हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस, वो पूरी चीजों को गलत कर देगा, राइट. Using different frames to generate data can lead to dissimilar conclusion. अब देखो मैं मुझे कोई डिसीजन लेना है, इसमें मैं डिफरेंट फ्रेम्स यूज कर रही हूँ या डिफरेंट तरीका यूज कर रही हूँ. सो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है ना मुझे. मेरा तो
और डेटा गलत हो सकता है, इज इट पॉसिबल और नहीं? मुझे तो एक क्या बोलते हैं एक कन्वीनियंस और एक कंसिस्टेंट पैटर्न को यूज करने की जरूरत है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सैंपल। सैंपल्स अब कितने तरह का होता है? एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपल्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। एक हो गई आपकी जजमेंट। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को मैं पहले बता दूं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी बेस्ड में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग। बस क्योंकि यहाँ पे नंबर्स को हम नहीं ले रहे हैं, ये बहुत इजी वे में, जैसे आप जजमेंटल, आप जजमेंट के हिसाब से आप ले रहे हो कि हाँ मैं इसको पसंद कर रही हूँ, तो वो एक हो गया जजमेंट कि मुझे ये फेवरेबल लग रहा है, तो इस तरह का हो गया आपका मतलब क्या बोलते हैं, यू आर टेकिंग ऑन अ जजमेंट। जैसे कन्वीनियंस भी उसी तरीके का है। तो ये क्या है, ये डिपेंड्स ऑन दी जजमेंट मेथड जो है वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेटर के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट, कि इन्वेस्टिगेटर क्या सोच रहा है। entire thing is dependent on the judgment of the investigator. It includes those items which truly represent the universe with regard to the characteristics under investigation. So for example, मैं example दे रही हूँ judgment का. For studying the spending habits of the student, an investigator may select 5 or 10 students from a class of 100 students who in the opinion of the investigator are representative of the class. तो ये पूरी तरह से जो इन्वेस्टिगेटर है, जजमेंट वाला जो है, एक तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस, तो नॉन प्रोबेबिलिटी है, इसमें चांसेस वाली कोई बात नहीं है। ये पूरा जैसे अब नॉन प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट आपने लिया जजमेंट बेस्ड। जजमेंट में जो इन्वेस्टिगेटर है उसके जजमेंट के ऊपर है, वो क्या सोच रहा है, अकॉर्डिंग टू हिम ही विल कलेक्ट द डेटा। अब उसके हिसाब से वो एक क्या बोल रहे हैं, वो एक सैंपल या वो अपने हिसाब से ओपिनियन के हिसाब से वो सिलेक्ट कर रहा है पूरी चीजें। तो इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं डेफिनेटली जजमेंट मेथड में, क्योंकि ये तो आपके कुछ साइंटिफिक मेथड नहीं है, ये पूरी तरह से इन्वेस्टिगेटर के पर्सनल प्रेजुडिस के ऊपर है। नो डाउट ये इजी होता है क्योंकि सैम्पलिंग यूनिट्स बहुत लंबा चौड़ा है, तो डिपेंड्स कि वो क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा, इस तरीके से, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। when the sample is obtained by selecting a convenience population unit. अभी convenience sampling में हम क्या करते हैं, हम लोग एक convenience sampling convenience sample कर लेते हैं. The convenience sampling is also called the chunk. A chunk is a part of population being investigated that is selected neither by probability nor by judgment but by convenience. देखो chunk कन्वीनियंस जो सैम्पलिंग होती है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है उसको हम लोग बोलते हैं चंक। चंक मतलब क्या हुआ, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन बीइंग इन्वेस्टिगेटेड दैट इज सिलेक्टेड नाइदर बाय प्रोबेबिलिटी, ना उसको प्रोबेबिलिटी द्वारा करते हैं ना नॉर बाय जजमेंट बट बाय कन्वीनियंस, मतलब मैं अपनी सुविधा अनुसार उसको सिलेक्ट करूं, राइट। एग्जांपल्स ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग आर सैंपल्स ऑब्टेन फ्रॉम टेलीफोन डायरेक्टरीज, ऑटोमोबाइल रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा. Personal biases affect the convenience sampling because the investigator will choose a sample that is convenient to him. No doubt, यहाँ पर convenience मेरा convenience है, मैं जिसको मुझे जो सुविधा लगे मैं उसको select कर रहा हूँ, right? तो उसके हिसाब से मैं choose करूँगा, तो definitely it depends कि मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है. Next is the probability sampling. Probability sampling मतलब ही आप समझ में आ रहा है कि when every items in the universe has a known chance of being selected in the sample is known as probability sampling. देखो probability sampling मतलब क्या, probable chances. हम सोच के ही चल रहे हैं कि हर एक आइटम का चांसेस है, मतलब एंटायर यूनिवर्स में जो जो आइटम है, मे बी फॉर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द डिमांड, द एनुअल डिमांड, एनीथिंग, हम मान के चल रहे हैं हर एक आइटम का इक्वल चांस है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, राइट. So such method is known as probability sampling. उसको हम लोग बोलते हैं probability sampling. It is a scientific technique of drawing sample from the population according to the law of chance. So according to the law of chance, each unit or item of the population has pre-assigned probability of being chosen in the sample. This implies that the sample items are selected at random and are independent of person making the study. तो ये जो probability sampling है, it is more scientific because it is based on the law of chance. तो इसमें एक हर एक चीज में एक प्री असाइन प्रोबेबिलिटी है, इक्वल चांसेस हैं या 80-20, 20-40, एनीथिंग, एक चांसेस असाइंड है. अकॉर्डिंग टू सिम्पसन एंड काफ्का, रैंडम सैंपल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द वे इन विच दे आर सिलेक्टेड. अब देखो हम लोग आ जाते हैं
सिंपल रैंडम सिलेक्शन में। अब डिफरेंट टाइप का सैम्पलिंग होता है, एक होती है सिंपल रैंडम सिलेक्शन, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, चलिए हम देख लेते हैं। इन अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स आइटम्स इंक्लूडेड आर chosen without regard to their probability of occurrence. We understood this convenience sampling and judgment sample. ये clear है ना? आगे बढ़ूं मैं? Yes. Okay, चलो. Types of sample probability. In a probability sample, items in the samples are chosen on the basis of known probabilities. हम लोग मान के चलते, there is a law of chance. So probability samples, simple random, systematic, stratified and cluster. Now simple random, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं simple random selection पे. Here every individual or item from the frame has an equal chance of being selected. ये जब हम बात करते हैं ना simple random selection, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये तो सिस्टमेटिक हो गया, सिंपल रैंडम। सपोज सिंपल रैंडम सिलेक्शन है, ये एक सैम्पलिंग फ्रेम दिया है फॉर पॉपुलेशन विथ 850 आइटम्स। 850 आइटम्स है सपोज, उनके आइटम नेम और आइटम दिया हुआ है, आइटम का नंबर दिया हुआ है। सो पोर्शन ऑफ अ रैंडम नंबर टेबल। अब यहाँ से 850 में से मैं सिंपल रैंडम अगर सैंपल लेती हूँ तो मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। सिंपल रैंडम है, इसमें कुछ भी नहीं है कि ये अनरिस्ट्रिक्ट, मतलब बोल सकते हैं हम लोग दिस इज अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, right? Here we can select from n number of sample size and we can select any n element, right? So the sample is a simple random sample when n the sample size is drawn from a population with n number of element. If means anything, I can select anyone. This is clear, simple random sampling. मेरे पास इतने सारे डेटा है, मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकती हूँ. This is unrestricted random sampling. ठीक है, जैसे लॉटरी में होता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी ना, आई कुड सिलेक्ट एनीवन. एक्सक्यूज मी. नाउ another one is probability sample, that is systematic sample. अब ये जैसे हमने unrestricted random sampling की, the next one is systematic sampling. Here systematic sampling में क्या होता है? systematic sampling में हम लोग एक सिस्टम के हिसाब से करते हैं. जैसे एक स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है, ठीक है ना. सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, यू डिसाइड ऑन अ सैंपल साइज, आप एक सैंपल साइज पर डिसाइड करते हो, ठीक है. जैसे यहाँ पर देखो, दिस इज अ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि वी विल डिसाइड ऑन, जैसे कि हमारा एक ये है, फर्स्ट ग्रुप इज दिस, ये मेरा फर्स्ट ग्रुप है, 1 2 3 4 मेंबर है, एंड देन आई विल वर्क ऑन विथ एवरी मे बी फिफ्थ ग्रुप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो एवरी सिक्स्थ ग्रुप इस तरीके का, या एवरी फोर्थ ग्रुप इस तरीके का. तो वी हैव टू डिसाइड ऑन द सैंपल साइज, then divide frame of n individuals into groups of k. That means anything, जैसे 40 लोग हैं, 40 we have 40 members, उस 40 members को मुझे 10-10 करके डिवाइड करना है. 40 members को मुझे 10-10 4-4 लोगों में डिवाइड करना है. तो 4-4 लोग में अगर मैं डिवाइड करूंगी, we will have total 10 groups, right? 40 को अगर मैं डिवाइडेड बाई 4 करती हूँ, we'll get 10 groups. तो 10 groups आ गए आपके. So, ये सिस्टमेटिक सैंपल में क्या होता है, सिंपल सी बात है, हम लोग एक सिस्टम में करते हैं. मे बी आई विल चूज द डेटा, मतलब मेरे पास अगर डेटा है तो उसमें से मैं एवरी फिफ्थ मेंबर को सेलेक्ट करूंगी, एवरी 10th मेंबर को सेलेक्ट करूंगी. दिस वे विल मूव ऑन. समझ आया? अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपल, स्ट्रैटिफाइड सैंपल. देखो, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग इज ऑल्सो सिस्टमेटिक सैंपलिंग, ये भी सिस्टमेटिक सैंपलिंग में ही आ जाता है. तो स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटा मतलब क्या होता है, स्ट्रैटा मीन सिंपली डेट, मतलब अ ग्रुप, एक ग्रुप हम लोग बोलते हैं. डिवाइड, जैसे यहाँ पर देखो क्या प्रोसेस कैसे है, डिवाइड पॉपुलेशन इनटू 2, और ये जो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग होती है ना, इसमें छोटे छोटे ग्रुप्स पहले डिवाइड होते हैं, फिर उस ग्रुप से हम लोग सैम्पलिंग करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग. तो आप स्ट्रैटिफाइड जो सैम्पलिंग है, इसमें आप देखो क्या होता है, कॉम्बिनेशन अप्रोच आप समझ लो, दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हो जा रही है, रैंडम भी हो जा रहा है और सिस्टमेटिक भी हो जा रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन. पहले क्या किया, वी डिवाइडेड पॉपुलेशन इनटू 2 और मोर सब ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रेटा. ये जो सब ग्रुप्स हैं या जो छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेटा, इसलिए उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपल, अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक.
कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर हमने डिवाइड किया, जैसे जो टोटल पॉपुलेशन था इसको डिवाइड किया गया ऐसे 4 तरीके से। देखो चारों जो ग्रुप हैं, जैसे इसको येलो किया है, ये थोड़ा ग्रीनिश है, ये ब्लू है। सो दिस इज जस्ट, दिस कलर हैज बीन गिवन जस्ट टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। उस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से इस टोटल पॉपुलेशन को पहले डिवाइड कर लिया गया। दिस इज मोर ऑफ साइंटिफिक, ये थोड़ा और ज्यादा अच्छा होता है। अब उनमें से हम रैंडम सिलेक्शन कर रहे हैं, मतलब हर ग्रुप से फिर हम रैंडम सिलेक्शन कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, कोई भी छूट नहीं रहा है। देखो मोस्ट ऑफ द पीपल आर सिलेक्टेड, देखो यहाँ पर इस कैरेक्टरिस्टिक्स के इसमें इंक्लूडेड है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के इसमें इंक्लूडेड है, तो हर कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग इक्वल इक्वल डिवाइड हो गए। नाउ वी आर कलेक्टिंग द डेटा, मतलब रैंडम सैम्पलिंग हम करेक्ट कर रहे हैं। This is a common technique when sampling population of voters, stratifying across racial और socioeconomic line। तो यहाँ पर हम सारी चीजों को ही कलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, समझ आया? दिस इज मोर साइंटिफिक, ये थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच होता है। The stratified random sample is more representative because we first divide the population to various strata and then draw a sample from each stratum. It provides greater accuracy and more efficient estimate when compared to simple random। ठीक है ना, क्लियर है? आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो अब आ गया प्रोबेबिलिटी सैंपल, दैट इज क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या हो रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी फाइनल यूनिट्स जो है आर सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन और स्ट्रैटम। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग जो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल क्लस्टर्स, ईच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटायर जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग डिवाइड करें इनटू क्लस्टर एंड ईच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, हर एक क्लस्टर जो है ना वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ क्लस्टर्स इज सिलेक्टेड। अब सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ क्लस्टर्स इज सिलेक्टेड, हम वहां से कोई भी एक मैंने क्या किया, पहले क्लस्टर में डिवाइड किया, जैसे स्ट्रैटा में था उसी तरीके से ये क्लस्टर्स में, बट यहाँ पर ओवरऑल है, यहाँ सबको को मतलब डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम लोग, टोटल क्लस्टर बना दिए बस ऐसे 4-5, जैसे यहाँ पे बनाया। पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू 16 क्लस्टर्स, population is divided into several clusters, each representative of the population, हर एक represent करता है population को। A simple random sample of clusters is selected. Now we can select anyone, simple random. All items in the selected clusters can be used or items can be chosen from a cluster using another probability sampling technique. A common application of cluster sampling involves election exit polls where certain election districts are selected and sampled. यहाँ पर ये कॉमन एग्जिट पोल्स हमने बहुत न्यूज वगैरह में देखा है, वेयर एग्जिट पोल्स को लेकर बहुत ज्यादा आजकल डिस्कशंस होती है। तो वहां पर हमने देखा होगा कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को ले लिया जाता है और सैंपल किया जाता है, राइट। सैम्पलिंग इस तरीके से होती है। सैम्पलिंग प्रोसेस कैरिड आउट इन वेरियस स्टेजेस, ये बहुत स्टेजेस में होती है। फर्स्ट स्टेज में some suitable we can use some suitable method, second method में first stage units again and again। actually यहाँ पे जो cluster sampling है इसमें भी बहुत stages में ही काम होगा। it introduces certain type of flexibility also, so you don't need to know in depth about all those things. Now probability sample comparing sampling method, simple random sample and systematic sample। we understood that simple random sample जो है and systematic sample, it's simple to use, may not be a good representation of the population underlying characteristic। ये जो simple random sample है, this may not be a good characteristic, मतलब this may not be a good representation, क्योंकि simple random में we can ignore a lot of people, मतलब बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक सैंपल में रादर हमारे मैक्सिमम लोगों को हम कवर कर सकते हैं विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। वैसे स्ट्रैटिफाइड सैंपल जो है इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल अक्रॉस द एंटायर पॉपुलेशन। तो स्ट्रैटिफाइड सैंपल का ये एडवांटेज है, यहाँ से हम लोग क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहे हैं विच इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द पॉपुलेशन, सो इट इज मोर बेनिफिशियल। क्लस्टर सैंपल मोर कॉस्ट इफेक्टिव बट इट इज लेस एफिशिएंट, need larger sample to acquire the same level of precision। cluster sample बहुत ज्यादा effective नहीं होता, right। now types of survey errors, हम लोग ये जो सर्वे कर रहे हैं ना डेटा कलेक्शन में, इसके कितने तरह के एरर्स हो सकते हैं। first is coverage error or selection bias exist if some groups are excluded from the frame and have no chance of being selected। कभी क्या होता है हमारा सर्वे एरर में हम लोग कवरेज ही नहीं कर रहे, सारे लोग सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहे, सिलेक्शन बायस हो जाता है।
Non-response error or bias. People who do not respond may be different from those who do respond. जो रिस्पॉन्ड करे दे मे बी डिफरेंट ना देन हु आर नॉन रिस्पॉन्सिव. नॉन रिस्पॉन्सिव का अलग तरीके का रिस्पॉन्स हो सकता है. सैम्पलिंग एरर, दिस विल डेफिनेटली एग्जिस्ट. वी अंडरस्टूड, पहले ही मैंने बताया कि सैंपल अगर सही नहीं होगा देन हमारा पूरा एनालिसिस गलत हो जाएगा. Then the measurement error due to weaknesses in question design and response. Measurement error might occur if our techniques or the questionnaires that we design is wrong. वहां पे गलत होगा तो प्रॉब्लम आएगी. देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से डायग्राम में दिया हुआ है कवरेज एरर. बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि हमने यहाँ से सिलेक्शन किया बट वी एक्सक्लूडेड दिस. ये कवरेज ही नहीं हुआ, इन लोगों को कवर ही नहीं किए. तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रैटिफाइड जो डेटा है उसमें मैंने स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में ये कवरेज एरर की प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है रादर देन अदर वे. तो ये देखो ये अगर एक्सक्लूड हो गया दिस सेक्शन तो क्या हो रहा है, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फ्रेम. They might have different types of problems or they might have different types of responses which is all the way excluded. Fine. Non-response error, अब कुछ लोग response नहीं करे जैसे हमने पहले देखा. Then the sampling error, हमने sampling सही नहीं किया. Random differences भी हो सकता है sample to sample. मैंने इसको select किया, इसको select किया, but ये और ये यहाँ पर अलग है. There are two different types of characteristic as well. Sampling error होने के chances बहुत है. And the measurement error. Measurement error mainly occurs because of मैंने questions are not proper. Questions सही नहीं है उसके कारण होता है.